नमस्कार। पंजाब में बेअदबी और चुनावी कनेक्शन, 8 कॉल आने पर कैसे बदल गया सच, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। मैं हूं विभोर और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम। पंजाब में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के पिछले दिनों 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें पहले बेअदबी का मामला अमृतसर का है और दूसरा बेअदबी का मामला कपूरथला का है। दोनों ही जगहों पर उग्र भीड़ ने आरोपियों को पीट पीट कर मार डाला। अंग्रेजी में इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। लिंचिंग पर नेताओं ने साधी चुप्पी। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात तो हो रही है, लेकिन लिंचिंग की कोई बात नहीं कर रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब के कोई भी सियासी दल या नेता मॉब लिंचिंग की आलोचना नहीं कर रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि बेअदबी करने वालों को तालिबानी स्टाइल में खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। आज हम आपको पंजाब पुलिस की एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, जिसमें वह शुरुआत में तो बात कर रहे थे कि कपूरथला गुरुद्वारे का मामला बेअदबी का नहीं है, बल्कि यह हत्या का मामला है। लेकिन फिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों के पास कुछ फोन आते हैं और इसके बाद वह तुरंत अपना बयान बदल देते हैं। अमरजीत ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ 305 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 295 ਏ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਰਿਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਥੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਔਰ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੈਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੀ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਮੋਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 306 ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ ਫॉर ਦੀ 4 ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਈਂਡਲੀ I think because of the sensitiveness of the issue I would request ਕਿ 4 ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ and then there are unidentified about 30 to 40 people। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? 100 ਦੇ ਕਰੀਬ unidentified। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, for the sake of brevity and if for the sake of ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ देयर इज नथिंग विजिबल ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਕਰੇਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ 295 ਏ ਹੈ ਡੈਸੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ओके
For the time being, we have registered one FIR. We have registered one FIR. 295A FIR number 305. ਕੋਈ ਹੈ ਡੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਸ- ਉਹ ਕਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਪਲੱਸ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੁਡੇ ਦੀ FIR ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਐਕਟ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ देयर इज नथिंग। ही इज सेइंग कि निशान साहब ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। देयर इज एट प्रेजेंट ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ देयर इज नो इवेंट विजिबल that something was done to the ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਵਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ। Apparently ਮੈਂ ਦੱਸ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਹਾ please। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ SSP ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, पर किसी भी नेता में दम नहीं है कि वह सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रख सके। बेअदबी का आखिर क्या है मतलब? बेअदबी का मतलब होता है कि अपमान यानी कि तिरस्कार करना। सिख धर्म में मान्यता है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ नहीं, बल्कि सिखों के लिए इसे एक जीवित गुरु माना गया है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का कोई भी मामला एक जीवित गुरु पर हमला करने के बराबर है। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा गुरुद्वारा, जिसका शब्द की गुरु का निवास होता है, और गुरु की सेवा में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं को पवित्र माना गया है। अगर इसमें से कोई भी वस्तु और प्रतीक चिन्ह का अपमान होता है तो सिख धर्म में इसे बेअदबी माना जाता है। और अगर मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है तो दोषी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही अगर गुरुद्वारे की किसी भी वस्तु या प्रतीक चिन्ह की बेअदबी होती है तो ऐसे मामले में 2 साल की सजा होती है। लेकिन पंजाब में यहाँ तक की नौबत ही नहीं आई, बल्कि उग्र भीड़ ने दोनों आरोपियों को पीट कर उनकी हत्या कर दी। इसमें स्वर्ण मंदिर की घटना में आरोपी को मंदिर के दरबार में ही पकड़ा गया। भीड़ ने बनाया आरोपी का वीडियो। आरोप ये है कि उस दिन वह व्यक्ति नंगे पांव गुरु ग्रंथ साहिब दरबार में चढ़ गया और उसने तलवार से सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया। इसके बाद इस आरोपी को पकड़ लिया गया और भीड़ ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। घटना के समय एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें भीड़ नारे लगाते हुए दिख रही है और जिस व्यक्ति पर बेअदबी का आरोप है वह व्यक्ति उनके पैरों में जमीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि हमें यह नहीं पता जब यह वीडियो बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये आरोपी मर चुका था या नहीं। इस मामले में पुलिस ने अब तक आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की, जिससे अभी तक ना तो इसका नाम पता चला ना ही ये पता चला कि ये कहाँ रहता था और ये कहाँ से आया था और इस पर लगे आरोप कितने सच हैं। लेकिन हमें यह जरूर पता चला है कि भीड़ ने कड़े से आरोपी के सिर पर बार बार हमला किया। इसके अलावा जब उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तब उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। क्या पुलिस के सामने हुई हत्या? अब आपको दूसरी घटना के बारे में बताते हैं, जो स्वर्ण मंदिर के लगभग 60 किलोमीटर दूर पंजाब के कपूरथला में हुई। 19 दिसंबर को कपूरथला के निजामपुर में स्थित एक गुरुद्वारे में निशान साहिब को कथित तौर पर अपवित्र करने की कोशिश की गई,
जिसके बाद गुरुद्वारे के जत्थेदारों ने आरोपी को पकड़ लिया और बाद में उसकी कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के दौरान हत्या करने वाले लोगों ने फेसबुक पर एक लाइव भी किया, जिसमें वह उसे बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। वीडियो में यह लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा है, वो निशान साहिब को अपमानित करने के लिए गुरुद्वारे में आया था और जब उसे ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब घटना के समय पुलिस इस इलाके पर पहुंची थी तब तक वह व्यक्ति जिंदा था। आरोप ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने उस आरोपी को मार डाला। अब जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि घटना के दौरान पुलिस ने अपनी शुरुआती बयान में खुद ये कहा था कि आरोपी एक चोर है जो चोरी के मकसद से गुरुद्वारे में आया था। इस मामले में पवित्र ग्रंथ और प्रतीक चिन्ह की बेअदबी जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में पुलिस ने बयान बदल दिया और इसके पीछे राजनीतिक दबाव को माना जा रहा है। कपूरथला की इस घटना के बाद जालंधर रेंज के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस मामले में और शक पैदा कर देती है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आईजी ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 4 व्यक्ति की पहचान हो चुकी है और बाकी 100 अज्ञात लोगों के बारे में जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान उनके मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आता है और वह उसे उठाने के लिए चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए 8 कॉल, ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार किया। इस दौरान उनके मोबाइल फोन पर कुल 8 कॉल आई। इसमें से 5 कॉल खुद आईजी ने रिसीव की, जबकि 3 कॉल एसएसपी ने उठाई। इस फोन कॉल से पहले आईजी मीडिया में इस मामले के बारे में जो बता रहे थे वो उसे पूरी तरह से पलट गए। पहले तो वह हत्या का मामला दर्ज करने की बात कर रहे थे और फोन कॉल आने के बाद उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने अभी किसी आरोपी की पहचान नहीं की है और कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि कॉल पुलिस के बड़े अधिकारियों और सरकार से जुड़े नेताओं और मंत्रियों द्वारा किए गए थे, जिससे इस मामले में राजनीतिक दबाव होने की भी बात सामने आ रही है। इस मामले में सरकार और विपक्षी दलों की तरफ से अब तक जितने भी बयान सामने आए हैं उसमें बेअदबी का तो जिक्र है, लेकिन किसी भी पार्टी ने मॉब लिंचिंग का कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी पार्टियां बोलने से बच रही हैं। इसके पीछे पंजाब के विधानसभा चुनाव हैं। सिखों को नाराज नहीं करना चाहते नेता। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 57% पंजाब में सिखों की आबादी है, यानी सिख धर्म के लोगों को नाराज करके कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। इस वजह से बेअदबी पर तो पार्टियां बोल ही रही हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग पर चुप हैं। इसे आप नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भी समझ सकते हैं। उन्होंने धार्मिक बेअदबी के मामले में आरोपियों की हत्या को सही ठहराया है और कहा है कि ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। इस खबर पर आज हम आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी भी धर्म और उसके प्रतीक चिन्ह के अपमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात हम सभी धर्मों के लिए सामान्य रूप से मानते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। लेकिन हमें लगता है कि एक लोकतंत्र देश में जहां सरकार है, पुलिस है और पूरी न्यायिक व्यवस्था है, वहां भीड़ द्वारा लोगों की पीट कर हत्या कर देना भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। भारत संविधान के खिलाफ तो है ही, बल्कि ये भारत की न्याय संगत प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। ये घटनाएं कितनी सच हैं, ये हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। ऐसी और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।